our Honorable Principal, Dr. Pushpalata Madam. We have with us on the dais Professor Manikant Mandal Sir, HOD, Department of Civil Engineering, Bhagalpur. So let me start this event with a few words. Once again, good morning and warm welcome to everyone present here. I am Dr. Raj Anvit, HOD, Department of Computer Science and Engineering branch at BC Bhagalpur. I welcome you all on this grand occasion of National Mathematics Day 2022. Grand because of the significance of mathematics and significance of mathematics because of the impact that it has on our day-to-day life. So let me proceed with a quote which says, "Maths is the language of universe. So the more equations you know, the more you can converse with the cosmos." Every year, December 22 is observed as National Mathematics Day to mark the birthday of the renowned mathematician and mathematical prodigy Srinivas Ramanujan. So today we remember his contributions towards mathematics and also reflect the significance of mathematics in our everyday lives. So with these words, I would like to invite Principal Ma'am to kindly hand over a bouquet to our DM, respected DM Sir. Now I would like to invite Professor Manikant Mandal Sir to kindly hand over a memento to Arvind Sir, Director Triple IT. Thank you, sir. So proceeding further, I think a video was displayed earlier which has demonstrated who Srinivas Ramanujan was, whatever was, and also his immense contributions in the field of mathematics. So let me reiterate a bit so that we can have a feel about this event. So Srinivas Ramanujan was born to a Tamil Brahmin family in 1887. Although he belonged to a very poor background, but his interest towards mathematics was immense. So he pursued his mathematics interest despite having meager resources. So as the saying goes, "Har Birwan ke ho jeetne paat." So he was bright right from the beginning of his childhood. Eventually, he made his way towards the Trinity College, London. He was a fellow there. Okay. So some key points I would like to mention here that he was the first Indian to be a fellow of Trinity College, Cambridge. He has some notable contributions are his contribution towards divergent series, hypergeometric series, and Riemann series. You might have seen a movie which is named The Man Who Knew Infinity. So above all, he was known for his contribution towards finding out what is infinity. Okay. Next, I would like to stress a bit about why this event is significant or why we celebrate this National Mathematics Day. So it is marked to raise the awareness about mathematics and the importance of mathematics. We cannot survive without food. That is a fact. Also, it is a fact that we cannot survive without mathematics. In our day-to-day life, if we remove mathematics, the life will be very difficult.
So people celebrate this day to understand the importance of mathematics in everyday. Government plays its part by providing awareness campaigns and sensitization towards the common people, also, especially towards the youth. So different institutions like colleges, schools, they conduct Olympiads, quiz competitions and different events to mark this event. So with these words, I would like to invite our respected principal ma'am to kindly come on the dais and say a few words. Hello, good morning all of you. First of all, I welcome today's chief guest, Dr. Shri Subrato Singh, District Magistrate IAS of this Bhagalpur, and the guest, Dr. Arvind Chaubey. He is the Director of IIIT Bhagalpur. Thank you to coming here and very warm welcome to both of you, and as well as all faculty members, all students and their parents, media, all very warm welcome to BC भागलपुर. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य है, उन्होंने अपनी रुचि श्री श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर आयोजित मैथमेटिक्स टैलेंट सर्च, जो कि BCST के द्वारा कराया गया और हर जिलों में कराया गया, उसमें जो हमारे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेके जो मैथमेटिक्स को अपना प्रिय विषय मानते हुए इस टैलेंट सर्च में भाग लिए और वो अव्वल रहे, और 10 प्रतिभागी टॉपर्स 10 को BCST ने अपनी तरफ से प्रोत्साहन के रूप में अवार्ड एंड सर्टिफिकेट देने का फैसला किया, और हम सब उसमें सहयोग कर रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड प्राइज BCST के द्वारा पटना में ही आयोजन किया गया है उनका पुरस्कार वितरण, और 3rd to 10th जो स्टूडेंट्स हैं भागीदारी धन्यवाद के काबिल है. और सबसे ज्यादा हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर श्री सुब्रत सिंह और अरविंद चौबे जी, दोनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो अपना समय निकालकर हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उनको अवार्ड देना है उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए. धन्यवाद एक बार पुनः अब सबको. अब इसके बाद जो इन्होंने बताया श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, आप जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि उनकी कुल वर्ष केवल 33 इयर्स थी. 33 साल की उम्र में उन्होंने मैथ्स में जो डिफरेंट फील्ड में अपना जो योगदान दिया, आज भी हम पढ़ रहे हैं. वो नंबर सिस्टम से लेकर के जो आपका मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, वो सारा चीज आज हम सब उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि उन्होंने बिना स्कूली शिक्षा लिए हुए डायरेक्ट वो एक मेंटर के अंदर रहते हुए उन्होंने इस मकाम को प्राप्त किया. तो हम लोग इस संकल्प के साथ भी आगे बढ़े आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर कि क्यों नहीं हम मैथ्स में बहुत आगे बढ़कर अपना ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन करें और देश के विकास में अपना योगदान दें. मैथमेटिक्स का जो उपयोग है, एप्लीकेशन है, एवरीवेयर एवरी फील्ड में आ जाए. पहले जो मैथमेटिक्स होता था वो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स था, जो लीनियर मैथमेटिक्स था, लीनियर अलजेब्रा था, आज वो सारा कन्वर्ट हो गया डिस्क्रीट में. बिकॉज डिजिटल इंडिया जो आप सुनते हैं रोज, उसमें एवरीवेयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज यूज. चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, और चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग, जो कि वो तो पहले से ही मैथमेटिक्स में पूरा ही का पूरा उसका योगदान रहा है. लेकिन
हम यही कहना चाहेंगे जितने स्टूडेंट यहाँ पर अभी जीत के ही आए हैं वही नहीं, उनके पेरेंट्स अपने और भी बच्चे जो हैं उनके जो अगर उनके पड़ोसी हैं सबको बोले कि वो इसी तरह जिस विषय में भी उनका इंटरेस्ट है वो आगे आए और समाज में आगे बढ़े, खुद का विकास करें, देश का विकास करें। इसके साथ ही मैं सबको अपने आशीर्वचनों से सबको संबोधित करते हुए यही कहूंगी कि उनका भविष्य उज्जवल हो, इसी तरह वो आगे बढ़े और हर इस तरह की प्रतियोगिता में अपना इंटरेस्ट लेके उसमें अपने प्रतिभागी बने और अपना विकास में योगदान दें। इसके बाद मैं ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि हमारे डीएम साहब बहुत ही उनके पास कम समय है, तो हम उनको नेक्स्ट उनसे उनके आशीर्वचनों को लेते हैं और उनका जो आपके साथ जो संदेश होगा वो बिल्कुल काबिले तारीफ होगा और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कार्यक्रम भी आगे करें। Thank you for introducing the recent program that we organized for students of class 6 to 12. Now I would like to kindly invite PM Bhagalpur, Sri Subrat Kumar Sen ji, to kindly have some words with us. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर साहब जो उपस्थित हैं ट्रिपल आईटी के, और जितने भी यहाँ प्रोफेसर्स हैं, विभिन्न विभागों के एचओडी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो पुरस्कार पाने वाले छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं स्कूल कॉलेजेस से या विभिन्न संस्थानों से, तो सबको मैं सबसे पहले तो मैं जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने आमंत्रित किया, इनवाइट किया इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप सभी लोग उपस्थित हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में मैं पदस्थापित हूँ, यहाँ का जिला पदाधिकारी हूँ, एक तरीके से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनको आज अवार्ड मिलने जा रहा है, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से आगे अच्छा करते रहें। देखिए, यहाँ बहुत सारे विषय के एक्सपर्ट हैं, अपने अपने डोमेन के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो मैं उस पर नहीं चाहूंगा कि आप जिस फील्ड को चूज करके आप आगे करना चाह रहे हैं, खासकर मैथमेटिक्स की बात हो रही है, और जितने इसमें बच्चे चुन करके आए हैं, निश्चित रूप से वो टैलेंटेड हैं, तभी उनको ये पुरस्कार, ये मुकाम जो है वो मिला है। मैं कुछ जनरल बातें जो आप लोगों से, जो हम लोग भी स्कूल कॉलेज से निकल करके ही यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि पहले हम लोग भी उधर बैठा करते थे, तो आज जो है इधर आकर के आपके सामने कुछ बातों को रख रहे हैं जो हम लोगों ने देखा है, जो कुछ अनुभव से सीखा है, जो कुछ किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पढ़ाई के दौरान। तो फिर कुछ सालों बाद हो सकता है कुछ आप में से ही कुछ लोग इधर आकर के फिर इसी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करेंगे। तो सामान्य बातें जो हम लोगों ने देखी हैं, समझी हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों के बहुत पुराने हम लोग नहीं हैं, जब स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, हमसे भी जो पहले के सीनियर्स थे, वो चीजें उस समय में भी लागू होती थी। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तब भी वो चीज जो है मतलब उतनी ही महत्वपूर्ण थी, और आज के समय में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है। भले ही है कि हम लोग के जमाने में सोशल मीडिया, जैसे आज के टाइम में कोरोना का दौर आया, तो सारी चीजें जो है वो मोबाइल में आकर के जो है मतलब एक तरीके से सीमित हो गई। आप कोई भी चीज कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि 15 साल 20 साल पहले इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और निश्चित रूप से इसके कारण बहुत समस्या होती थी कि कोई चीज जो है, कोई घटना ही अगर कहीं घट गई तो पता चला कि 2-3 दिन बाद पता ही चला। तो उसी तरीके से कि कहीं कोई अच्छा काम हुआ, कहीं कोई खोज हुई, कहीं किसी ने पढ़ाने का कोई नया तरीका इजाद किया, किसी चीज को समझने का कोई नया तरीका खोजा, तो काफी समय लग जाता था नीचे तक आने में। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में मतलब देश ही नहीं विदेश में भी जो काम हो रहा है, वो चीज पलक झपकते मतलब 2 सेकंड 10 सेकंड में जो है वो इतने लेवल पे शेयर हो जाती है कि चीजें आसान हो गई। लेकिन कुछ चीजें जो है
वो उस समय में भी कारगर थी और आज भी कारगर है। क्या है? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल ये समझना चाहिए कि आपने निश्चित रूप से जो है वो कुछ सोच रखा होगा कि आपको क्या करना है, आप अपने को कहाँ प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस करना चाह रहे हैं, कहाँ आप देखना चाह रहे हैं अपने को 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद। आपकी एक कुछ सोच होगी। जो स्कूल के बच्चे हैं 10 साल 15 साल निकले, जब उनका जो है बीटेक कंप्लीट हो, बैचलर्स की डिग्री उनको मिले, तो वो क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए। अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको ये इन चीजों को जो है बिल्कुल दिमाग में इनके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए और छोटे छोटे गोल्स पे बात होनी चाहिए। आज के दिन में आपने रख रखा है कि मैं जो है मैंने सोचा है कि मैं इस साल जो है इस चीज पे ध्यान दूंगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ और मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो वो आपके लिए आपको उसमें अपना प्रयास जो है वो लगातार रखना होगा। उसको आपको मतलब आपको अपने एफर्ट से उन चीजों को पूरा करना होगा। तो पहले तो आपके पास एक होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, फिर उसके लिए आपका प्रयास होना चाहिए। और तीसरी चीज है तब ये आती है टेक्नोलॉजी और जो आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, उसमें आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो कोई टेक्नोलॉजिकल टूल हो सकता है जो आपकी मदद के लिए है, या आप और बेहतर शिक्षा के लिए कहीं आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आप कुछ और बेहतर करने के लिए आप कुछ किसी तरह की आपकी मदद चाहिए, तो वो सब बात की बात आती है। अनावश्यक कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना समय जो है वो बर्बाद करते हैं। जहां तक हो सके हम लोग अपना समय बर्बाद ना करें। जो आपकी पसंद है, जरूरी नहीं है कि कोई जो है डॉक्टर इंजीनियर बन के ही या सिविल सर्वेंट बन के ही जो है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए अच्छा जो है वो करे या कर रहा हो सकता है किसी को जो है ह्यूमैनिटीज में ही इतनी इंटरेस्ट है, वो उसी में उतना आगे बढ़ करके बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। या हम लोग जो स्कूल कॉलेजेस में आज को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लड़के लड़कियां जो है वो खेल के क्षेत्र में या कला की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो जो है आपका जो है मार्शल आर्ट हो, या किसी भी तरह का संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, तो उसमें भी जो है उन्होंने इतना एक्सेल कर लिया, इतना अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि उनको देश और दुनिया जानती है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो चीजें आसानी से शेयर हो जाती हैं। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना होगा कि आप निश्चित रूप से अपने बारे में सोचिए। आप अपने बारे में सोचिएगा तो उसी से आपकी जो है फैमिली भी जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ पाएगी। जब आपका पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, जब हर एक परिवार कुछ अच्छा करने लगे तो राज्य आगे बढ़ता है और राज्य से देश बढ़ता है। आपके जैसे ही और हम लोगों के जैसे ही युवाओं ने करके दिखाया है कि स्टार्टअप का जमाना है आज। यूनिकॉर्न मतलब बिलियन, 1 बिलियन की जो है कंपनी लोग 5 साल 10 साल में बना ले रहे हैं। अगर वो भी यही सोचते कि हम जो है कोई एक नौकरी इसी तरह की हमको मिल जाएगी और नौकरी करके जो है हम लोग आसानी से अपना जो है जीवन गुजर बसर कर लेंगे, तो फिर ये चीजें हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। और सभी मतलब आप पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जितने छोटे शहर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 टियर 3 टियर जो सिटीज होती हैं सब जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, वहीं से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं से जो निकल रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिएगा, प्रोफाइल उठा करके जो अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कुछ स्टार्टअप बनाया, लोगों को रोजगार दिया, आज उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, वो देश के विकास में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप बहुत लोगों का प्रोफाइल उठा करके देखिए कि उनका जो है पास्ट क्या रहा है। तो उसमें जहां से मैंने बात शुरू की थी, उनकी अपनी इच्छा थी कि हमको ये काम करना था, उनका अपना लगन और उनकी अपनी मेहनत थी, उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। और तीसरी चीज वो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है, उसमें आपके टीचर्स, पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज। तो आज के जमाने में उसे रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। आज के जमाने में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे कि हर एक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने का, उन्होंने जो हम लोगों का 7 निश्चय का पार्ट 1 था उसमें ही उन्होंने घोषणा की थी। उसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज तो काफी पुराना है, हर एक चाहे वो जिला कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर एक अनुमंडल में जो है ITI बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बन रहे हैं। लड़कियों के लिए जो है वो विशेष व्यवस्था, जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आप देखेंगे,
तो उसमें क्या है, लड़की जब पैदा लेती है वहां से लेकर के जब ग्रेजुएट कर रही है तो उसमें जो है हर एक लेवल पर 10th 12th ग्रेजुएशन हर एक लेवल पर जो है सरकार सपोर्ट कर रही है, उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये इतना बड़ा एक सपोर्ट का सिस्टम है, 4 लाख रुपए तक का जो है लोन आपको लड़कियों को मात्र 1% के ब्याज पे और 4% बिल्कुल साधारण ब्याज पे अन्य स्टूडेंट्स को, तो वो आसानी से अवेलेबल है। ये सुविधाएं हो सकता है कि आज से 15-20 साल पहले इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो जब ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हम लोगों को, सब लोगों को पूरा अपना एफर्ट लगाना है, अपनी मेहनत करनी है, अपने लिए अच्छा सोचना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे तभी आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य के लिए जो है आप अच्छा कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज मेरे पास समय बहुत कम है, आप लोगों से इंटरेक्शन मतलब उस तरीके से नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहां जो कुछ हम लोगों ने देखा है, सीखा है, थोड़ा बहुत जो भी अपने पढ़ाई के दौरान या अपने काम करने के दौरान, तो जो मतलब गूढ़ बात आप कह लीजिए, जो निचोड़ है वो यही है कि आपको प्रयास अपना करते रहना चाहिए। आपके अपने इंटरेस्ट एरिया है, आप अपने इंटरेस्ट एरिया से हट करके आप अगर आप कुछ ऐसे चीज में आप अगर दिमाग लगाओगे तो हो सकता है कि आप कुछ कर लो वहां पे, लेकिन जितना आप अच्छा अपने इंटरेस्ट एरिया में, जैसे हो सकता है कि सबको मैथ्स पसंद नहीं हो, उसी तरह से हो सकता है कि सबको जो है लिटरेचर अच्छा नहीं लगे। आप लोगों ने सुना होगा जितने आईआईटी और इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशन हैं जो प्योर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर ये किया जा रहा है कि मतलब जो है जितने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, अदर जितनी इस तरह के मतलब विधाएं हैं, उनके भी कोर्सेज को साथ साथ पैरेलली रन कराया जा रहा है कि लोग इंटरेक्ट कर सके, बच्चे समझ सके। हो सकता है कि 9th 10th 11th में वो चीज समझ में ना आए, उन्होंने पेरेंट्स के कहने पे, टीचर्स के कहने पे जो है एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, बाद में पता लगा कि नहीं, हमारी दुनिया तो कहीं और है। तो वो आपको सोचना होगा, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आपको बिल्कुल प्रयास करना है, सब लोगों को, हम लोगों को मेहनत करना है, पूरा आगे बढ़ना है और पूरा सिस्टम आपके सपोर्ट के लिए। देखिए एक चीज लास्ट में बस यही कहूंगा कि हर एक कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे ना, ठीक है ना। सिस्टम जो है, कोई भी इकोलॉजी जो है वो परफेक्शन की तरफ बढ़ती रहती है, लेकिन जो है वो कंप्लीट जो है उसमें इंप्रूवमेंट की सिस्टम में है, वहां आपको 2-4 कमी हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन हमारा ध्यान जो है उस कमी की तरफ कम रहना चाहिए, उस कमी को दूर करने पर रहना चाहिए, ना कि उस कमी की तरफ ध्यान दे करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करने पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। कि ये जो समय है 5 साल 7 साल का, जो आप स्कूल कॉलेजेस में जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो इसमें हम उन्हीं चीजों पे बात करके, उन्हीं चीज पे सोच के, उस पर दिमाग लगा के अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। जितनी एनर्जी हमारी है उसको हम पॉजिटिव चीजों पे चैनलाइज करें, उन कमियों को भी दूर करें, साथ साथ पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दें और बेहतर प्रयास करते रहें। पुनः मैं जितने बच्चे जिनको आज अवार्ड मिल रहा है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मैं बधाई देता हूं। हो सकता है किसी कारण से उनको जो है पुरस्कार नहीं मिल पाया, हो सकता है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि 10th में मार्क्स कम आ गया, लेकिन पता चला कि आगे चल करके हम लोगों के भी कई दोस्त हैं किसी कारण से 10th 12th में कम मार्क्स आ गया, लेकिन आगे चल करके पता चला कि जिसको बहुत अच्छा जो फर्स्ट डिवीजन या 90-80% था उससे वो आगे निकल गया, उसने इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो किसी मामले में दूसरे से कम है, बस वही आपको पूरी लगन के साथ मेहनत करना है, अपने इंटरेस्ट को परसू करना है और अच्छा सोचना है, अच्छे के लिए प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir, for guiding and motivating the budding mathematicians present over here, and also making them aware of the different schemes which can act as resources for their development. Now, I would like to invite Professor Arvind Kumar Chaubey, sir, to please kindly come and have a few words with us. मंच पर उपस्थित
हमारे सम्मानित सदस्य माननीय जिलाधिकारी श्री सेन साहब, प्रिंसिपल भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और माइकल साहब जो हमारे बिल्डिंग हाउस कमेटी के अंदर भी हैं, भागलपुर के, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स जो आज अवार्ड के लिए आप आए हुए हैं। मैथमेटिक्स रामानुजन जी का आज हम 22 तारीख को मना रहे हैं और समारोह कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने मैथमेटिक्स के लिए जो प्रतिभाएं हुई हैं उसमें आपने प्रतियोगिता के आधार पर उचित स्थान पाया है। आज उसका समारोह है आपको अवार्ड देने के लिए। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का बैकबोन है। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप देखें तो 4 to 5 पेपर्स मैथमेटिक्स के होते हैं। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर भी, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में कहीं एक पेपर है। तो मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग में काफ़ी योगदान है और जिसका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है वो नेचुरली बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स से ही तो आप प्रेफर करते हैं। बायोलॉजी तो मेडिकल, मैथमेटिक्स अच्छा, तो इंजीनियरिंग ऐसा कंसेप्ट आप शुरू से लेके चलते हैं। तो इंडिया में, हमारे यहाँ भारत में मैथमेटिक्स के काफ़ी लोग जानकार लोग हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं सभी बच्चे। इसी आधार पर आप देखते होंगे कि विदेशों में, यूएसए या यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर मैथमेटिक्स के जो ट्यूटर्स हैं वो यहाँ से ऑनलाइन ट्यूटर इंडिया से ट्यूशन दे रहे हैं, या जो भी विदेशों में जो लोग जा रहे हैं। अभी जो माइग्रेशन है इंडिया से यूएसए में, यूरोपियन कंट्री में, सबसे पहले चाइना का था, इंडिया का था। अब चाइना में चूंकि एक पॉलिटिकल अफेयर्स है, शुरू से ही मैथमेटिक्स में आपने ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, आपने ध्यान दिया है जो आपको उस स्तर तक लाया। और हमारे जिलाधिकारी साहब का बेस्ट प्रोग्राम है, तो जस्ट मेरा शुभ आशीर्वाद है आपका और आशा करेंगे कि आप मैथमेटिक्स को लेते हुए +2 के बाद ट्रिपल आई टी भागलपुर नहीं और ट्रिपल आई टी जैसे इंस्टीट्यूशन, NIT और IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में आप आएँ और अपना नाम रोशन करें। थैंक यू। Thank you, sir, for emphasizing the importance of mathematics and also the role mathematics has in engineering courses. Thank you, sir. Now, I would like to invite DM sir to distribute prizes to students who secured rank 3 from class 6 to class 12, one by one. सोनी कुमारी RPMV विद्यालय दयालपुर। सोनी कुमारी, रोहित कुमार क्लास 7 रैंक 3, सेंट ट्रेसास स्कूल सीनियर सेक्शन अलीगंज। नेक्स्ट इज पुष्कर आनंद, DAV बरारी भागलपुर। पुष्कर आनंद, DAV बरारी भागलपुर। नेक्स्ट इज प्रेम कुमार प्रीतम, रामधारी हाई स्कूल पकड़ा तेतरी। खुशी कुमारी, NKSBD गर्ल्स हाई स्कूल। प्रियांशु राज, PNB कॉलेज भागलपुर।
रियांशु राज, EMB कॉलेज भागलपुर। सैफ अली, रियांशु राज, सैफ अली, इंटर स्तरीय स्कूल सजौर फतेहपुर भागलपुर। थैंक यू सर। Thank you sir for distributing the certificate, cash prize and medals. Thank you, sir. Now I would like to invite Professor Arvind Kumar Chaubey sir to distribute prizes to students. Manmohan Kumar, Middle School, Kharik, Bhagalpur. Manmohan Kumar, Class 6, he secured rank 4, Middle School, Kharik, Bhagalpur. So the prize amount is rupees 700, cash prize is rupees 700. And 800, rupees 800 for third rank. Now Rohit Kumar, Ashish Kumar of Grade High School, Kiranpur, Sultanganj. Rank 4. Ashish Kumar. Tulika Gupta, Class 8, Rank 4, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bhagalpur. Class 7, Ashish Kumar, Rank 4. अभी किसके पास गया था? अभी किसके पास गया था उसके? क्या हुआ इसको मिला? Now, Arnav Anand, Class 6, Rank 6, UMS, Manik Pathanda. Arnav Anand, Class 6, Rank 6, UMS, Manik Pathanda. Ashok Kumar, Rank 7, MS, Sahu Pravata. Ashok Kumar, Class 6, Rank 7, MS, Sahu Pravata. Himanshu Kumar, Class 6, Rank 8, Group Krupa, Academy Kahdon, Bhagalpur. Himanshu Kumar, Class 6, Rank 8, Group Kripa Academy. Anshika Kumari, अंशिका कुमारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तेलगी, खरीक. Next, Class 7, Shubham Kumar, Holy Family School, Bhagalpur.
शुभम कुमार, होली फैमिली स्कूल, भागलपुर, क्लास 7 रैंक 5। नेक्स्ट क्लास 7 रविकांत कुमार, रैंक 6, RMS सैनो जगदीशपुर। रविकांत कुमार, क्लास 7 रैंक 6, RMS सैनो जगदीशपुर। रविकांत कुमार, RMS सैनो जगदीशपुर, रैंक 6। आयुष कुमार, क्लास 7 रैंक 7, RMS बेलथुआ शाहकुंड भागलपुर। आयुष कुमार, क्लास 7 रैंक 7, RMS बेलथुआ शाहकुंड भागलपुर। प्रियांशु कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर, क्लास 7 रैंक 8। प्रियांशु कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर, क्लास 7 रैंक 8। क्रिस सिन्हा, क्लास 7 रैंक 9, बाथ। क्रिस सिन्हा, क्लास 7 रैंक 9, बाथ। नेहा रानी, क्लास 8 रैंक 5, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। नेहा रानी, क्लास 8 रैंक 5, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। नेक्स्ट अमर कुमार, क्लास 8 रैंक 6, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। अमर कुमार, क्लास 8 रैंक 6, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। सुदर्शन कुमार, क्लास 8 रैंक 7, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। सुदर्शन कुमार, क्लास 8 रैंक 7, जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। ओम प्रकाश कुमार, क्लास 8 रैंक 8, उत्कृम MS एकचारी, दियारा भागलपुर। ओम प्रकाश कुमार, उत्कृम MS एकचारी, दियारा भागलपुर। सानिया, क्लास 8 रैंक 9, शेखर चंद, चांदी प्रसाद महाविद्यालय मध्य विद्यालय खरीदपुर। सानिया, रैंक 9, क्लास 8। नेक्स्ट क्लास 9 प्रेम सागर, रैंक 5, हाई स्कूल एकचारी। प्रेम सागर, हाई स्कूल एकचारी, क्लास 9 रैंक 5। मरिया हारून, क्लास 9 रैंक 6। मरिया हारून, क्लास 9 रैंक 6। रजनीश कुमार राजा, क्लास 9 रैंक 7, हायर सेकेंडरी स्कूल किशनपुर।
अमखोरिया। रजनीश कुमार राजा, क्लास 9, रैंक 7, हाई स्कूल, किशनपुर, अमखोरिया। प्रिंस कुमार, क्लास 9, रैंक 8, इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला कहलगांव। प्रिंस कुमार, क्लास 9, रैंक 8, इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला कहलगांव। खुशी कुमारी, क्लास 9, रैंक 9, हाई स्कूल एकचारी, भागलपुर। खुशी कुमारी, क्लास 9, रैंक 9, हाई स्कूल एकचारी, भागलपुर। हो गया था? करिश्मा कुमारी, क्लास 10, रैंक 5, NKSBD गर्ल्स हाई स्कूल, भोलासपुर, भागलपुर। आकर्ष, क्लास 10, रैंक 6, DAV पब्लिक स्कूल, भागलपुर। आकर्ष, क्लास 10, रैंक 6, DAV पब्लिक स्कूल, भागलपुर। प्रियांशु कुमार, क्लास 10, रैंक 7, इंटर लेवल मॉडल हाई स्कूल, तुलसीपुर, यमुनिया। प्रियांशु कुमार, इंटर लेवल मॉडल हाई स्कूल, तुलसीपुर, यमुनिया। नहीं है। लड़की का एडमिट कार्ड। नेक्स्ट इज रोशनी कुमारी, क्लास 10, रैंक 8। रोशनी कुमारी, क्लास 10, रैंक 8, NKSBD गर्ल्स हाई स्कूल, भोलासपुर, भागलपुर। रोशनी कुमारी। आकांक्षा कुमारी, क्लास 10, रैंक 9, गर्ल्स हाई स्कूल। आकांक्षा कुमारी, क्लास 10, रैंक 9, गर्ल्स हाई स्कूल। बैठ जाओ, अभी आप लोग सब बैठ जाओ। Now I would like to invite Professor CP Singh sir, HOD Mechanical Department, Bhagalpur College of Engineering, to hand over the prizes. रोशन कुमार महतो, क्लास 11, रैंक 5। रोशन कुमार महतो, क्लास 11, रैंक 5, +2 RDP हाई स्कूल, अम्मा पाली, भागलपुर। रोशन कुमार महतो। रोशन कुमार राम, क्लास 11, रैंक 6, +2 RDP हाई स्कूल। रोशन कुमार राम, क्लास 11, रैंक 6। नेक्स्ट इज शिवानी कुमारी, क्लास 11, रैंक 7, TNB कॉलेज। शिवानी कुमारी, क्लास 11, रैंक 7, TNB कॉलेज। शिवानी कुमारी, क्लास 11, रैंक 7, TNB कॉलेज। नेक्स्ट पीयूष कुमार, क्लास 11, रैंक 8, हाई स्कूल, हरिपुर। पीयूष कुमार, क्लास 11, रैंक 8, हाई स्कूल, हरिपुर। Thank you, sir, for distributing the prizes to students. Now, I would like to invite on the stage Professor K.N. Ram, sir, HOD Electrical Engineering, to kindly distribute the prizes.
सूरज कुमार क्लास 12 रैंक 6 KNSM इंटर स्कूल सुल्तानगंज। सूरज कुमार क्लास 12 रैंक 6। सूरज कुमार KNSM इंटर स्कूल सुल्तानगंज। साक्षी कुमारी इंटर स्कूल अकबर नगर भागलपुर रैंक 5। साक्षी कुमारी इंटर स्कूल अकबर नगर भागलपुर रैंक 5। संतोष कुमार जवाहर सौरभ कुमार शारदा पाठशाला कहलगांव रैंक 8। सौरभ कुमार क्लास 12 रैंक 8 शारदा पाठशाला कहलगांव भागलपुर। Now I would like. Thank you, sir, for distributing the prizes. Now I would like to invite on the stage Professor Sanjay sir, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, to kindly come on the stage and distribute the prizes. Class 12 Saksham Saurabh, Class 12 rank 10. School Class 12 rank 10. Thank you, sir, for distributing the prize. 10 Middle School Bhulasar Bhagalpur. Prem Sagar Class 6 rank 10. Thank you. Thank you. Now I would like to call on the stage Professor Santosh Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, to kindly come on the stage and distribute it. निपुण क्लास 8 रैंक 10 जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। निपुण क्लास 8 रैंक 10 जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर। Thank you, Santosh sir. Now I would like to call on the stage Professor Nikhil Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, to kindly distribute the prize. Ayush Kumar, Class 9, Rank 10, Inter-Level Model High School, Tulsi. Class 10, Kishu Kumar Anand, Rank 10. Kishu Kumar Anand, Class 10, Rank 10. Dr. Chandradev Yadav High School, Bilori, Lakhisar. I think the prize has been given to all students. If there is okay, I have some certificates left. If you are present, kindly come on the stage.